नमस्कार साथियों, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे तन से, मन से और अपनी चेतना से। आज हम जावा के दुनिया में एक और स्टेप आगे बढ़ते हुए जिसका टारगेट है कि जावा के अंदर हम फर्स्ट प्रोग्राम साथियों कैसे बनाएंगे, और पूरा का पूरा मैं आपको फुली एक्सप्लेन with respect to Java, what is public, what is static, what is void main, what is string, what is system.out.println, and how can we compile of this program and how can we run of this program with set proper path. So the first program in Java I fully explained. First program in Java, suppose we have to take class demo and start from here, public static void main and string args this. So this is the main function. If we want to display any message with respect to Java, system.out.println. So we write welcome to Java and then close this curly braces. After that, firstly we save of this program. So save file name dot Java. Dot Java is the extension of Java. After that, compile. So Java C is a Java compiler and space, then we write file name dot Java. सेव करेंगे फाइल के नाम से, और हम जावा सी, एक कमांड होती है जावा सी के जावा के अंदर, उस कमांड को लिखेंगे, फाइल का नाम लिखेंगे, डॉट जावा लिखेंगे. डॉट जावा इज एक्सटेंशन ऑफ जावा. After that, when we compile of this program, then this program convert into bytecode, which is called class file. So run, after that run Java space class name. So what is class name? So class name is demo and file name is well.java. Suppose you choose the file name is well.java. So you save of this program your location. After that, Java C space well.java. So well is a file name. Listen carefully. Well is a file name dot Java. After that, we run of this program Java space demo. Java is a again command. So Java से हम प्रोग्राम को रन करते हैं Java स्पेस क्लास के नाम से. Java C स्पेस फाइल नेम डॉट जावा के नाम से इसको हम क्या करते हैं, कंपाइल करते हैं. अब जैसे इस प्रोग्राम को हम कंपाइल करेंगे, तो कंपाइल करने के बाद जहां आपका ये प्रोग्राम सेव हो रहा है साथियों, मेमोरी जहां भी किसी फोल्डर के अंदर, सो दिस इज कन्वर्ट इनटू बाइट कोड. ये बाइट कोड में कन्वर्ट होगा. आफ्टर दैट यू रन बाइट कोड मीन्स क्लास नेम. क्लास नेम के नाम से ही हमेशा बाइट कोड बनेगा. बाइट कोड को आप क्या करेंगे, रन कर देंगे. रन करने के बाद आंसर आपको मिलेगा स्क्रीन पे, वेलकम टू जावा. सो व्हाट इज प्रोसेस? Suppose our program save in code for YouTube and Java program folder. So firstly we write Java C space well.java. So when you enter any key or press key from the keyboard, then this is converted into bytecode. After that you write Java space demo, then display message welcome to Java. Okay. So after that firstly I want to execute this program in Notepad++. हम इस प्रोग्राम को Notepad++ में साथियों पहले मैं आपको पूरा करके दिखा देता हूं. उसके बाद प्रॉपर क्या होने वाला डिस्कस करूंगा कि बारी बारी से किस तरह से ये प्रोग्राम का पब्लिक काम करेगा, किस तरह से स्टैटिक काम करेगा. सो फर्स्टली वी ओपन Notepad++. ओके, सो वी प्रेस Ctrl+N for new. So class demo and public static void main string args. Then we open yes system.out.println. So we write welcome to Java. Okay साथियों, then close this story here. So firstly we save. If I want to our drive, then G drive
G drive in code block and Java program. So we write val, suppose val डॉट जावा से पहले से फाइल का नाम सेव है, मैं उसको रीराइट ओवरराइट कर देता हूँ। यहाँ पे इस तरह से मैंने val डॉट जावा के नाम से फाइल को सेव किया। अब मुझे इसको साथियों क्या करना है, डॉस पे जाके कंपाइल करना, देन रन करना है। सबसे आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। आई वांट टू टेल यू वेरी इजी मेथड। फर्स्टली वी राइट, you write close, you write on file, then we save as, okay, we click on save as। after that यहाँ पे आप प्रेस करेंगे सिंपल, then you write cmd, okay। cmd के बाद सीधे आप देखिए वहां पहुंच चुके हैं कोड फॉर यूट्यूब जावा प्रोग्राम, जहां आपने अपने जावा के प्रोग्राम को जिस फोल्डर में सेव किया है, सेव एज पे क्लिक करने से ऊपर cmd लिखने से डायरेक्ट आप वहां पहुंच जाएंगे। आपको बार बार cd का यूज करने की आवश्यकता नहीं है। सो फर्स्टली वी राइट यस जावा वेल डॉट जावा। सो बोल रहे हैं कि जावा, क्योंकि हमने कमांड सही नहीं दी है, हमें लिखना पड़ेगा जावा सी। क्या लिखना होगा, जावा सी। ओके, कंपाइल हो गया है। कंपाइल होने के बाद आप देखेंगे जैसे ये प्रोग्राम कंपाइल होगा साथियों, मैं इस फोल्डर को आपको बारीकी से खोल कर दिखा देता हूं। जैसे ही आप इस प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे, कंपाइल करने के बाद आपका जो देखिए जावा प्रोग्राम्स के अंदर मेरे फाइल सेव हैं, ये दिस वन मैं बाकी सबको रीड कर देता हूं जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो। ओके, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको किसी भी स्थिति में। हटा देता हूं मैं इसको। ध्यान से देखिए क्लास का नाम क्या है, वापस आइए। क्लास का नाम है, क्लास का नाम देख लीजिए आप लोग, क्लास का नाम है डेमो। सो फाइल के नाम से कंपाइल करते हैं, क्लास के नाम से रन करते हैं। जैसे ही आप प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे, करंट में आपकी एक क्लास है, तो साथियों आपकी क्लास बन गई जाके डेमो डॉट क्लास से। दिस इज कॉल्ड क्लास फाइल एंड दिस इज कॉल्ड अनदर नेम इज बाइट कोड। अब रन बाइट कोड को करना होता है। रन करेंगे बाइट कोड को, दोबारा से जाएंगे डॉस पे और वहां पे जाके इसको हम रन करने वाले हैं साथियों। सो देखिए आपके सामने ये डिस्प्ले है। अब रन कैसे करते हैं, जावा स्पेस क्लास का नाम क्या है, डेमो। यस, मेरी बात को दोबारा ध्यान से देखें आप। कंपाइल करेंगे फाइल के नाम से, रन करेंगे क्लास के नाम से, तो इसलिए हमें क्या करना होता है, क्लास के नाम से ही हमेशा प्रोग्राम को सेव कर दीजिए, तो उसी नाम से कंपाइल होगा, उसी नाम से रन होगा। यस, आंसर आपके सामने आ चुका है, वेलकम टू जावा। So the answer will be displayed on your front and DOS. So अब यहां से आपका ये प्रोग्राम प्रॉपर तरीके से रन हो चुका है। दोबारा से आप देख लीजिए, कंपाइल करेंगे फाइल के नाम से, रन करेंगे क्लास के नाम से। सो इसलिए जब आप कंपाइल करेंगे, मैं एक बार और फिर आपको करके दिखा देता हूं। देखिए मैंने इसको हटा दिया यहां से, डेमो डॉट क्लास को। ओके, रिमूव कर दिया। करंट में यहाँ डेमो डॉट क्लास की कोई क्लास नहीं है। मैं जैसे ही कंपाइल करूंगा, मैं एक साथ आपको दिखाना चाहूंगा साथियों, थोड़ा सा पेशेंस रखना है आपको। देखिए आपके सामने आप ध्यान से देखेंगे, वेल के बराबर में अगर हमें विंडो को स्क्रीन करना हो, इसको स्क्रीन को क्लियर, तो कैसे करेंगे, CLS। ओके, देखिए ध्यान से, जावा सी स्पेस, फाइल का नाम है आपके सामने वेल डॉट जावा। व्हेन आई प्रेस एंटर की फ्रॉम कीबोर्ड, देन जनरेट क्लास फाइल। ओके, देखना आप। यस आ गई। इसको रन करेंगे कैसे, डेमो से रन करेंगे, आंसर आपके सामने। ठीक है, चलिए मैं वापस चलता हूं, आपके समझ में आई होप अच्छे से आ चुका होगा। मैं वापस चलता हूं अपने पीपीटी की दुनिया में। आइए वापस, मैं इसको बड़ा करूंगा यहां से पहले। इस तरह से मैंने आपके सामने नोटपैड प्लस प्लस, अगर आपके सिस्टम में इंस्टॉल नहीं है तो प्लीज आप इंस्टॉल कर लीजिए। डायग्राम में हम लोग देख पा रहे हैं कि फर्स्टली वी राइट कोड इन नोटपैड और नोटपैड प्लस प्लस ऑल्सो, एंड you want to like any IDE also. So firstly we write on code on notepad, then you save this file simple.java. After that compilation, so it's convert into simple.class, क्योंकि यहाँ पे दोनों का नाम सेम है, क्लास का नाम भी उसने सिंपल लिया होगा, इसलिए simple.class के नाम से बाइट कोड जनरेट हो गया। So this is the simple example how to work this internally in Java.
इंटरनल वर्क कैसे करता है? फर्स्टली क्लास फाइल से पहले सोर्स कोड होता है, जो हम टाइपिंग करके कोड बनाते हैं उसको हम सोर्स कोड बोलते हैं प्रोग्रामिंग की भाषा में। सोर्स कोड के बाद में क्लास फाइल बनेगी। अब देखिए क्लास फाइल के बाद में कितने स्टेप्स होते हैं। देखने में लगता है काम बड़ा आसान है, लेकिन इतना आसान नहीं होता, इंटरनली सारा काम होता है। क्लास फाइल आप समझ गए, क्लास फाइल को बाइट कोड बोलते हैं। क्लास फाइल कौन सी होती है? क्लास के नाम से बनेगी। ओके, जावा जो नाम की कमांड है उससे क्लास लोड होगी। जैसे हम जावा कमांड का इस्तेमाल करते हैं, क्लास लोड होने के बाद में जो बाइट कोड है, बाइट कोड वेरीफायर उसको वेरीफाई करेगा ये सही है या गलत है, इसमें कोई रन टाइम एरर तो नहीं है। इंटरप्रेटर क्या करेगा? उसको रन टाइम तक लेके जाएगा और हार्डवेयर मतलब उस पर जाकर डिस्प्ले कर देगा। ठीक है, इस तरह से इसका इंस्ट्रक्शन पूरा इंटरनली वर्क करता है। सो आई एक्सप्लेन वन बाय वन। सो टुडे माय टॉपिक नेम इज हाउ टू मेक फर्स्ट प्रोग्राम इन जावा विद फुली एक्सप्लेन्ड। सो मैं आपको फुली बताऊंगा हर चीज को। देखिए क्लास एक कीवर्ड होता है जो कि हम क्लास को डिक्लेयर करते हैं। डेमो इज अ यूजर डिफाइंड क्लास नेम, मतलब डेमो नाम की जो क्लास है वो हमने खुद बनाई है, इसलिए उसका नाम हम डेमो दे सकते हैं। नेक्स्ट इज पब्लिक। पब्लिक एक कीवर्ड होता है जिसको एक्सेस स्पेसिफायर जावा की दुनिया में बोला जाता है। इट हैज यूज आउटसाइड द क्लास। अगर हम इस मेन मेथड को कहीं बाहर इस्तेमाल करना चाहें, किसी पैकेज के अंदर, फोल्डर से बाहर या प्रोग्राम से बाहर, तो इसलिए जावा ने क्या किया, जेम्स गॉसलिंग उसकी टीम ने इसको लिखित में 100% पहले से पब्लिक ही बना दिया, उस पर कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा। परफेक्ट। चलिए, सो स्टैटिक इज अ कीवर्ड। द कोर एडवांटेज ऑफ स्टैटिक मेथड इज देयर इज नो नीड टू क्रिएट ऑब्जेक्ट टू इन्वेक द स्टैटिक मेथड। ये साथियों बिल्कुल भी समझ में अभी आपके में नहीं आएगा जब मैं स्टैटिक को आपको अच्छे से पढ़ाऊंगा, बट आप इतना समझ लीजिए, अगर आपको कोई डेटा मेंबर यानी क्लास का कोई वेरिएबल या कोई मेथड आपको मेन मेथड में कॉल करना है, आप चाहते हैं कि मैं इसका ऑब्जेक्ट ना बनाऊं, ठीक है, तो ऐसे केस में हम उसको स्टैटिक बनाएंगे। किसको? वेरिएबल को और फंक्शन को। सो जहां पे स्टैटिक शब्द का मतलब ये है कि यहाँ पे मैं जावा की बात कर रहा हूँ, यहाँ आपको ऑब्जेक्ट बनाने की आवश्यकता नहीं है, बिना ऑब्जेक्ट बनाए आप कॉल कर सकते हैं। इसलिए स्टैटिक मेंबर हमेशा क्लास के पार्ट कहे जाते हैं। ठीक है, तो जिनको एग्जीक्यूट कौन करता है? जेवीएम करता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि सी और C++ में जो मेन मेथड होता है उसको कौन कॉल करता है, कौन एग्जीक्यूट करता है? तो वहां पे साथियों करता है ओएस मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम। बट इन केस ऑफ जावा द जेवीएम एग्जीक्यूट मेन मेथड। ओके, हम पहले से जानते हैं कि कोई ना कोई रिटर्न टाइप होता है फंक्शन का, तो ऐसे ही जावा का क्या है, वॉइड दे रखा है, तो उसको कॉल कौन करता है? वापस कौन कॉल करता है? कोई फंक्शन ऐसा नहीं जिसको आप बिना कॉल करे कॉल कर सकें, ठीक है, बट इसको कॉल कौन करता है? मेन को जेवीएम करता है। और C++ में और सी में कौन करता है? ओएस करता है। वर्ड मैन आप पहले से जानते हैं, मुझे एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है। वर्ड इसलिए बाय डिफॉल्ट डिफाइन कर दिया कि हमें रिटर्न कराने की आवश्यकता नहीं है। और ये मेन आपका स्टार्टअप करने के लिए, प्रोग्राम को स्टार्ट करने के लिए रिप्रेजेंट किया जाता है। स्ट्रिंग इज अ प्रीडिफाइंड क्लास, ऑब्जेक्ट ऑफ स्ट्रिंग क्लास, इट हैज stored many of character and used to for command line argument। command line argument अभी आपके समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगा, आगे पढ़ाऊंगा तब समझ में आएगा। जो एरे का जो सिंबल दे रखा है वहां से हम कमांड के टाइम पे ही अगर किसी वैल्यूज को स्टोर करना चाहें, एक से ज्यादा को, तो इसलिए जावा ने क्या किया, उसको एरे की फॉर्म में ले लिया। और हम पहले से जानते हैं कि एरे क्या होता है। एरे के अंदर कलेक्शन होते हैं टाइप्स ऑफ एलिमेंट के, बट सेम टाइप के। अगर तो इसलिए हमने इसको स्ट्रिंग बनाया, क्योंकि स्ट्रिंग में हम इंट को भी कन्वर्ट कर सकते हैं, कैर को भी कर सकते हैं, फ्लूट को भी कर सकते हैं। ओके, फिर वापस इनको उसी में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसलिए इसको हमने एरे के रूप में डिफाइन किया है। सिस्टम इज अ प्रीडिफाइंड क्लास। ध्यान से देखेंगे, जब भी हम जावा का सबसे छोटा, सबसे सिंपल प्रोग्राम बनाएंगे, दो क्लास उसमें पहले से रहेंगी, स्ट्रिंग एंड सिस्टम। स्ट्रिंग का एस बड़े से मिलेगा, सिस्टम का भी एस आपको बड़े से मिलेगा। ये प्रोग्राम की पहचान है। जहां भी आपको फर्स्ट कैरेक्टर बड़े से दिखाई दे जा पूरी जावा के अंदर, समझ जाइए जावा की क्लास है। दोनों क्लास हैं जावा की, जो कि पहले से बनी हुई आपको मिलेंगी। और ये दोनों क्लास कहां पर बैठी हुई हैं? हम अगर C और C++ की बात करें तो फंक्शन कहां बैठते हैं? हेडर फाइल के अंदर। तो क्लास कहां बैठती हैं? क्लास बैठती हैं पैकेज के अंदर।
पैकेज का नाम है, आज याद कर लीजिए आप, LANG। अगर आपने कोई जावा की पहले से बनी हुई क्लास का अपने प्रोग्राम में आपने इस्तेमाल किया और पैकेज का इस्तेमाल नहीं किया, समझ जाइए ये 100% लैंग पैकेज की क्लासेस हैं। जैसे सिस्टम, स्ट्रिंग, प्रिंट स्ट्रीम, इस तरह से सारी क्लासेस जो है हमारी लैंग पैकेज के अंदर साथियों आती हैं। ठीक है, चलिए। आउट इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ प्रिंट स्ट्रीम क्लास। प्रिंट स्ट्रीम नाम की क्लास बनी हुई है, उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया आउट, जो आप लिखते हैं सिस्टम आउट डॉट प्रिंटलन। अब आपके मन में एक प्रश्न आना चाहिए, सर सिस्टम तो क्लास हो गई, तो क्लास के बाद हम डॉट कैसे लगा सकते हैं? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। इसको डेप्थ में अभी नहीं जा रहा हूं, क्योंकि अभी उद्देश्य वो वाला डेप्थ वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको केवल इसका फुली एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि सिस्टम क्या है, आउट क्या है, प्रिंटलन क्या है। तो इसका मतलब सिस्टम स्टैटिक टाइप की क्लास बनी हुई है, क्योंकि हम स्टैटिक क्लास के बाद ही डॉट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। प्रिंटलन इज अ प्रीडिफाइंड मेथड अगेन प्रिंट स्ट्रीम क्लास मेथड यूज फॉर डिस्प्ले द स्ट्रिंग। इस तरह से जावा की कहानी है, हर एक का मैंने आपको बारी बारी से बताया। ln का मतलब है न्यू लाइन, अगर आप ln को हटा देंगे तो आपका जो आंसर आने वाला है हर एक लाइन में, वो नई लाइन में नहीं जाएगा। जैसे सी में हम नई लाइन में जाने के लिए /n का प्रयोग करते थे। वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। यहीं पे मैं कुछ आपको बता देता हूं कि जावा के अंदर हम जावा का जो मेन फंक्शन है उसको कितने तरीके से लिख सकते हैं, उसका सही तरीका लिखने का क्या है। तो फर्स्ट वन इज पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन स्ट्रिंग, देयर इज नो डाउट। सेकंड इज पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन स्ट्रिंग के बाद में हम जो args हमारा आर्गुमेंट है, जो ऑब्जेक्ट है, उससे पहले भी एरे का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके बाद भी एरे का इस्तेमाल कर सकते हैं। थर्ड वन इज पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन स्ट्रिंग के बाद 3 डॉट का आप इस्तेमाल करेंगे अगर आप एरे के सिंबल को नहीं लिखना चाहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है स्टैटिक पब्लिक, यानी कि पब्लिक स्टैटिक को आप आपस में एक्सचेंज भी कर सकते हैं। यू कैन एक्सचेंज बोथ स्टैटिक एंड पब्लिक एंड स्टैटिक, देयर इज नो इफेक्ट in Java main method. So, but you cannot interchange void main. Void main always fix, जैसा है वैसा ही रहेगा। Next one is public static final. You can write final. Okay, अगर आप final नहीं लिखते हैं तो इसका मतलब Java हमेशा by default final होता है। Final का मतलब ये कि इसको आप override नहीं कर सकते, इसका दोबारा से आप इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, इसलिए public static final। ठीक है। when I discuss about final keyword the next lectures, then I explain fully final keyword. Next one is final script ft। स्क्रिप्ट फाइल पॉइंटर के नाम से कीवर्ड होता है जिसका इस्तेमाल आप यहां भी कर सकते हैं, वो बाय डिफॉल्ट होता है, आप लिखें या ना लिखें। बट पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन बाय डिफॉल्ट नहीं होता है, वो आपको लिखना ही पड़ेगा। ओके, सो इस तरह से आपके वैलिड हो गए। अगर हम चलन की बात करें, चलन जो चलन में है वो 2 तरह से हम ज़्यादा डिफाइन करते हैं, या तो पहले वाला या तीसरे वाला। तो आप थर्ड वाला भी स्टेप आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम जावा के क्विज की बात करें, जब मैं जावा का क्विज कराऊंगा तो ये सारे के सारे ऑप्शन वहाँ दिखाई देंगे, इनमें से अगर क्वेश्चन आपको आ जाए तो आप इजीली कर सकते हैं। ओके, अब कुछ ऐसे भी हुआ कि हम इनवैलिड जावा के मेन मेथड कौन कौन से हो सकते हैं जो हम गलती अक्सर करते हैं। सो पहली मिस्टेक है पब्लिक वर्ड मैन, हम स्टैटिक को भी वहां से गायब कर देते हैं कभी कभी, ऐसा मेरा मानना है, यानी कि स्टैटिक यहाँ से मिस हुआ, स्टैटिक वर्ड मैन यहाँ से पब्लिक आपका मिस हुआ, तब भी पॉसिबल नहीं है। पब्लिक स्टैटिक वर्ड मैन स्ट्रिंग args। ओके, सो पब्लिक स्टैटिक परफेक्ट। वॉइड और मैन के बीच में स्टैटिक या पब्लिक नहीं आएगा, वो दोनों एक साथ रहेंगे, ट्यून से दोनों एक साथ, दोनों का जन्म हुआ था, सी के टाइम से जन्म हो गया था, उसी को कॉपी किया है जावा ने भी। ओके, सो एब्स्ट्रैक्ट पब्लिक स्टैटिक वर्ड मैन, एब्स्ट्रैक्ट आप मैन मेथड को नहीं बना सकते। ठीक है, और इस तरह से ये आपके जावा के वैलिड और नॉन वैलिड मेथड आपके सामने हो चुके हैं। मुझे लगता है कोई चीज़ जावा के फर्स्ट प्रोग्राम के एक्सप्लेन होने में नहीं बची है। अगर कोई मेरा प्यारा साथी या मेरे से कोई सीनियर भी हो सकता है इसको गलती से देखे, बट सीनियर तो इस लेक्चर को नहीं देखेंगे क्योंकि आई थिंक वो सब कुछ पहले से जानते हैं।
बट कोई नए सिरे से पढ़ना चाह रहा होगा जिसने आज तक जावा नहीं पढ़ी है, BCA MCA करने के बाद भी, जब हम MCA कर रहे थे उस समय 2 लाइन थी .NET और जावा, तो जिसने .NET चूज की वो .NEट में चला गया। जावा वाले हो सकता है कि अब वो .NET वाले बंदे जावा शुरू से पढ़ना चाह रहे हो तो उनको तो बेनिफिट हो सकता है। सो ध्यान रखना है, इस तरह का प्लेटफॉर्म आपको तैयार करना है। सो हाँ, मैं अपने पॉइंट पे आता हूँ कि अगर आप में से किसी मेरे प्यारे साथी या प्यारे स्टूडेंट को कोई इस पे प्रेजेंटेशन तैयार करना है, ओके, फुली एक्सप्लेन जावा फर्स्ट प्रोग्राम विद फुली एक्सप्लेन, जावा का पहला प्रोग्राम हमें बताना है, तो उस पर आप 15 से 20 मिनट, जैसे मैं आपके सामने बोल रहा हूँ इस तरह से आप बड़े अच्छे से बोल सकते हैं, और अच्छा टॉपिक रहेगा। जो फ्रेशर लेवल पे फर्स्ट टाइम जावा पढ़ेगा उसको भी अच्छे से समझ में आएगा। और क्लास में प्रेजेंटेशन अभी स्टार्ट हो भी गया है। इफ़ आई टॉक अबाउट BCA डिपार्टमेंट, श्यामलाल सरस्वती महाविद्यालय शिकारपुर बुलंदशहर की बात करें तो उसमें बच्चों का हम प्रेजेंटेशन भी कराते हैं। एक मैंने झलक अभी लास्ट शॉर्ट में डाली भी है। जितने भी स्टूडेंट आएंगे स्क्रीन पे सबका एक इंट्रोडक्शन होगा। इंट्रोडक्शन के बाद उनकी जो अपना टॉपिक लेके आए हैं उसके अनुसार कॉन्फिडेंस जरूर इंक्रीज होगा। कैमरे के सामने बोलना इतना आसान वास्तव में नहीं होता है, तो प्रयास यही है कि आप अच्छे से अच्छा अपना इंट्रोडक्शन एंड योर PPT ऑल्सो अच्छे से तैयार करके आएँ, और जितना कोशिश होगा हम आपके साथ रहेंगे, जितना हमें आता है एक साथ मिलकर काम करेंगे और आगे बढ़ेंगे। सो इन्हीं बातों को यहाँ पे सिलसिला को ख़त्म करते हैं क्योंकि काफ़ी लंबा टाइम हो गया है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ कमेंट, लाइक, शेयर एंड शेयर योर फ्रेंड्स, योर क्लीन्स, योर सीनियर्स, योर जूनियर ऑल्सो। थैंक यू वेरी मच। हमें रही प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते, फिर मिलेंगे चलते चलते। जय हिंद, जय भारत।